Yes, hello friends. Today we have discussed about Coulomb's law. So, what is Coulomb's law? First of all, we discuss about the definition of Coulomb's law. So, what is the definition of Coulomb's law? So, definition of Coulomb's law is it states that the force of interaction between two charges, the force of interaction between two charges is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So, Coulomb's law states that when two charges, let's suppose two charges Q1 and Q2, two charges are separated by a small distance r. We have take two charges Q1 and Q2. Both are at stationary position, मतलब both are at rest. When two charges are placed at a distance r, then the force of interaction means जो इनके बीच में force लग रही है, whether it is attractive or whether it is repulsive, that depends upon their charges. So the force of interaction between two charges, दो charges के बीच में force लग रही है, is directly proportional to the product of two charges, दोनों charges के product के equals to है, and inversely proportional to the square of the distance between them. और उनके बीच में जो हमने distance लिया है r, उनके inversely proportional है. So how can we written this? So according to the definition of Coulomb's law, so force is directly proportional to the product of two charges. Both charges का दोनों का हम product ले लेंगे Q1 into Q2. So that is first equation. Now second equation is the force of interaction between two charges is inversely proportional. Now inversely proportional to the square of the distance between them. So what is the distance? R. So r square, 1 by r square. So both are forces, यानी कि फोर्स जो है बेटा दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के भी इक्वल है, दोनों चार्जेस के स्क्वायर जो उनका स्क्वायर है उनके डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है. दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन कर देंगे, कंबाइन 1 and 2. When we combine both equation 1 and 2, so F is directly proportional to Q1 Q2 by r square. Now the equation is F is directly proportional to Q1 Q2 by r square. बेटा जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा देते हैं तो उसकी जगह पे कांस्टेंट लग जाता है, where k is called constant of proportionality. So k is written as is constant of proportionality. So जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया तो उसके जगह पे हमने k कांस्टेंट लगा दिया. So F is equals to k Q1 Q2 by r square. So that is the formula of Coulomb's law. Yes, next is what is k? K is a constant value
K is equals to, experimentally it can be calculated 1 by 4 pi epsilon naught. Experimentally it can be calculated 1 by 4 pi epsilon naught. Epsilon naught is the electrical absolute permittivity in free space. बेटा लिसन, जब हमने दो चार्जेस को सेपरेट किया बाय अ स्मॉल डिस्टेंस r, ठीक है, तो जब हमने चार्जेस को प्लेस किया तो हम किसी मीडियम में या हम उसे वैक्यूम में उसको प्लेस करेंगे, तो उस स्पेस की वजह से या उस मीडियम की वजह से उसके ऊपर कुछ एडिशनल फोर्सेस, हम जिन्हें एयर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, तो कुछ फ्रिक्शन फोर्सेस बोल सकते हैं, वो भी उनके ऊपर लगेंगी, जिनको हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो वैल्यू है हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की है, तो k की वैल्यू इक्वल्स टू होती है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ द फॉर्मूला ऑफ f इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r square. So now f is written as 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square. So now what is the value of epsilon naught? How can we calculate the value, dimension and unit of epsilon naught? So suppose both charges are equal. हम बेटा मान के चलते हैं कि जो दोनों चार्जेस हम ले रहे हैं उनकी वैल्यू यूनिट है, 1 यूनिट है, यानी कि दोनों चार्जेस इक्वल हैं। हमारे पास दोनों चार्जेस ही 1 कूलम के हैं, तो हमने उनको 1 यूनिट उनकी वैल्यू ले ली। जो उनके बीच का सेपरेशन है उसको हम सपोज करते हैं कि वो 1 मीटर है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 1 मीटर। सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 1 मीटर एंड बोथ चार्जेस आर 1 कूलम, देन द फोर्स बिटवीन दैम इज 9 into 10 the power 9 Newton. So the force between charges is 9 into 10 the power 9 Newton. So put these values in equation number 4. Put these conditions in equation number 4. So now F is equals to 9 into 10 the power 9 Newton, where 1 by 4 pi epsilon naught, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। Q1 Q2 को मैंने सपोज किया है दोनों ही 1 कूलम है, और उनके बीच का जो सेपरेशन है उसको मैंने सपोज किया है वो 1 मीटर है, और यहाँ पे 1 मीटर का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे भी 1 मीटर का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। 9 into 10 the power 9 Newton, 1 by 4 pi. So what is the value of 4 pi? It is taken as 22 by 7 or 3.14. अब एप्सिलॉन नॉट की हमने वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। सो 1 कूलम इंटू 1 कूलम बाय 1 मीटर स्क्वायर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को निकालना है, तो 1 बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 1 मीटर होल स्क्वायर, 1 मीटर का होल स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10 द पावर 9 न्यूटन। ऊपर हमारे पास जो टर्म है वो 1 कूलम है, 1 कूलम। सो बाय सॉल्विंग दिस वैल्यूज़, अगर हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10 द पावर -12। जब आप इस वैल्यूज़ को सॉल्व करोगे 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 1 मीटर का होल स्क्वायर है, 9 इंटू 10 द पावर 9 है न्यूटन। तो ये हमारे पास बेटा वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट की। नाउ आल्सो वी कैन रिटर्न द राइट द SI यूनिट्स। सो कूलम इज कूलम स्क्वायर,
दैट इज़ मीटर स्क्वायर, अपॉन में पड़ा है मीटर स्क्वायर, जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन को जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा पर न्यूटन। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम इसके डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं। सो डायमेंशंस निकालने के लिए बेटा ये आपके जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट्स, उसका फर्स्ट डेरिवेशन है कूलम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी कूलम्स लॉ पे हम बाकी के सारे जो हैं इसके पार्ट्स करते हैं। सबसे पहले हमें कूलम्स लॉ क्लियर होना चाहिए, देन बट आगे जो है हम उसकी नेक्स्ट डेरिवेशंस आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो आप इसको, अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। लाइक कमेंट्स जो भी हैं आप मुझे इसका इमीडिएटली जो भी आपके कमेंट्स हैं वो रिप्लाई करें। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट? F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. That is the formula of Coulomb's law. Coulomb force, हमने अब एप्सिलॉन नॉट के जो हैं वो डायमेंशंस निकालने हैं। सो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास ये टर्म बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 pi F Q1 Q2 by R square. We know that 4 pi term is a dimensionless, डायमेंशनल कांस्टेंट है ये। तो डायमेंशनल जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उनके कोई डायमेंशंस नहीं होते, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ फोर्स बच गया, साथ में दोनों चार्जेस हैं और आर स्क्वायर है। नाउ पुट द डायमेंशन ऑफ फोर्स। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज m1l1t-2। So dimensional formula of force is m1l1t-2। ये आपने +1 में सारे डिमेंशंस जब आप करते हो तो आपने फोर्स के डिमेंशंस की प्रैक्टिस की हुई है। फोर्स का फॉर्मूला जो होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। सो मास इंटू एक्सेलेरेशन से हम इसके डिमेंशंस निकाल सकते हैं। सिमिलरली जो चार्जेस लिए Q1 और Q2, इनके डिमेंशंस क्या होंगे, 1 कूलम, इनके जो डिमेंशंस हैं उनको हम लिखेंगे, देखो चार्ज जो है करंट से निकाल सकते हैं हम Q/T। सो व्हाट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्जेस? अगर हम यहाँ से फॉर्मूला बनाएं तो I × T जो है वो चार्ज का फॉर्मूला बन जाएगा। करंट को हम एम्पियर में मेज़र करते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम्पियर है, और टाइम को हम T लिखते हैं। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज AT। हमारे पास ऊपर यहाँ पे 2 चार्ज है, तो हम 2 टाइम्स AT की वैल्यू लिखेंगे, AT × AT। अब नीचे हमारे पास आर स्क्वायर पड़ा है, अब हम आर स्क्वायर के भी डायमेंशंस पुट कर देंगे। आर स्क्वायर जो है एक सेपरेशन है, तो सेपरेशन को हम L से मेज़र करते हैं, तो आर स्क्वायर को हम L स्क्वायर लिख लेंगे। तो बाय सॉल्विंग दिस टर्म तो हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बन जाएगा m-1 L-3 T4a square। So dimensional formula of epsilon naught is m-1 L-3 T4a2। So that is the dimensional formula of epsilon naught। So बेटा आज जो हमने टॉपिक किया है that is Coulomb's law। Coulomb's law क्या होता है, जब हम दो चार्जेस को, जो चार्जेस स्टेशनरी हैं मतलब जो रेस्ट पे हैं, उनके बीच में किस तरह से फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं, वो जो फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक तो हमने बोला कि दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा फैक्टर है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। दोनों फैक्टर्स को जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है F = K Q1 Q2 by R square, where K is constant of proportionality। उसके बाद मैंने आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बताया है, उसके यूनिट कैसे निकलते हैं वो बताया है, और उसके डायमेंशन हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं
वो किया है। तो हमारा ये आज जो कूलम्स लॉ है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कूलम्स लॉ की जो है अगली वेक्टर फॉर्म है वो करवाऊँगी। सो ओके, बाय बाय, टाटा बेटा।